Good evening, everyone. Am I audible to all of you? You all might be shocked who this person is. Yes. So before moving ahead, would like to tell that I am like trainer of First Bit Solution. So what topic do I teach then in First Bit Solution? Does anybody knows? Is anybody aware about it? Good evening, Vaishnavi. Very good evening. No? Okay, before I tell, तुम लोग इतने ही लोग रहते हो क्या? 4 ही लोग रहते हो सेशन में डेली? Or there are more students who will be joining? Yes, anyone? Please write in the chat box or just unmute and say. इतने ही रहते हैं? Yes or no? Okay, approximate 7. ठीक है, तो अभी तो 4 है, तो 3 बाकी है. मतलब ज्यादा लोग नहीं रहते हैं बैच में. Okay, fine. So now you all have joined. So I would like to introduce myself. So my name is Iskra Davare, as you can see on the screen, and I am the soft skill trainer of First Bit Solution, along with HR team lead at First Bit Solution. So I have two roles. So I work as a HR team lead as well in First Bit Solution, and for students, I am the soft skill trainer. So अभी तो तुम लोग join हुए हो नहीं हुए हो, you have taken admission or not, I don't know, but today we are going to have introduction to soft skill session. Fine. तो daily कौन से मैम का session रहता है? Which trainer or which mentor conducts your session daily? Yes, anyone? Sonal ma'am? Fine. So daily वो पढ़ाते होंगे, तो today we are going to have a conversation. टेक्निकल में सुनना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तो इन सॉफ्ट स्किल्स विल हैव अ कॉन्वर्सेशन एंड विल जस्ट कम टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन सॉफ्ट स्किल सेशन. तो I hope you all are ready for it. And first of all, I'm really proud of you all. Himanshu, Amol, Vaishnavi, Vijaya, Anushka. At 9 p.m., you joined the session. So it's the best thing that you have chosen this time to join the session. I think you are the person who can do anything in life. जो 9 बजे ज्वाइन कर सकता है सेशन, वो कुछ भी कर सकता है. Right or wrong? Okay, just send the reaction, right or wrong. So you five are such person who can do anything. कुछ भी आ जाए. Whatever, you must have faced number of things. Okay. Okay, now as you all can see me, गलती से तो कैमरा ऑन नहीं हुआ है. I always love to keep my camera on. तो कोई ऐसा है जिसको मराठी समझ में नहीं आती? Anyone? मराठी समझ में नहीं आती. Is there anyone who don't understand Marathi? हिमांशु, अमोल, वैष्णवी, अनुष्का, विजया. अच्छा, सगळ्यांना मराठी समजते. ठीक है. चलो फिर लेट्स स्टार्ट द सेशन इन मराठी ओनली. तो बघूया. अब रिकॉर्डिंग तो बाकी लोग देखेंगे, तो उनके लिए थोड़ा हिंदी मराठी विल मिक्स अप एंड थोड़ा सा इंग्लिश. Fine. So let's have some fun activity before moving. As a soft skill session, we always have some activity. So soft skill में क्या है? We enjoy plus we learn. टेक्निकल में तो क्या है? सीखो, इम्प्लीमेंट करो. तो वो इंटरेस्ट जिसको है वो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, जिनको नहीं है वो भी कर लेते हैं. तो अभी कोडिंग के वजह से कभी कभी अपना दिमाग भी हैंग हो जाता है. सब कभी कभी अपने डोको एकदम हैंग हो जाते हैं. ये कोड क्यों नहीं रन हो रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है. तो सॉफ्ट स्किल्स में ऐसा है कि इट इज रिलेटेड टू अस, रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, रिलेटेड टू आवर स्किल्स, आवर पीपल स्किल्स. So therefore, soft skill sessions are like enjoyment plus learning. Okay, so let's begin. So yeah, I'll tell. Don't worry, Himanshu. We'll discuss on it. So today is the introduction session only. So हम start करेंगे. So would like to know all. Today at 9 p.m. How are you feeling? What is your emotion? From the whole day, you must have spent the entire day by working or by spending time. So how are you feeling? Just one word. Relaxed? Oh, that's amazing. So you have joined the session and you're feeling relaxed. That's good. बाकी जो स्टूडेंट, तुमचे काय इमोशन है? Or just unmute and tell the emotion.
So Himanshu is relaxed. Others? Relaxed plus happy. Happy why? Why Vaishnavi? Is there any some amazing thing which happened today? Yes, Vaishnavi? काहीतरी चांगलं झालं असेल आज दिवसभरात. So she is relaxed and happy. कुछ तो भी मिला होगा लाइफ में. Okay. Next, who have written? Okay, Amol is feeling good. Relaxed, happy, good. That's it. Nobody with the awesome feeling. I'm feeling awesome today because I got to meet you all, the new students of my batch. Okay, fine, Vijaya. Okay then. So let's move ahead. अभी जैसे मैंने बोला कि we'll have some small fun activity. तो अभी मैंने आपको पूछा कि how are you feeling? Now I would like to show you two options. Okay. So क्वेश्चन इज की तुमको कैसा लग रहा है. क्वेश्चन असा आहे की तुम्हाला कसं वाटत आहे. तर आता तुमचं इमोशन एक्सप्रेस करण्यासाठी दोन ऑप्शन आहे. यू हॅव टू सिलेक्ट वन. ओके. सो शॅल आय जस्ट शो यू द स्क्रीन, unmute and tell yes or no. Shall I share the option on the screen together? Unmute and tell yes or no. अरे unmute करके बोलो. I should know. Okay, Himanshu said yes. Others? Okay, we'll do Yes, ma'am. Okay, Amol done. अच्छा ठीक है, काम कर लेते हैं. I'll say 1 2 3. At the count of 3, you all say yes or no together. Up to you. So would you like me to share the screen of the options? 1 2 3 go. Yes. Yes, ma'am. Perfect. क्या होता है ना, अभी सॉफ्ट स्किल सेशन में हम देखेंगे कि अनम्यूट करने जब जाते हैं ना तो हार्ट बीट हाई हो जाती है. यार सबके सामने कैसे, क्या अनम्यूट करके कैसे सबके सामने बात करूं. इतने सारे लोग हैं, वैसे तो 7 है, बट स्टिल वी फील लिटिल बिट हेजिटेंट. सो डोंट वरी, वी हैव सॉफ्ट स्किल सेशंस फॉर देयर. चलो फिर आई जस्ट शो यू द स्क्रीन. लेट मी शेयर द स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. Okay. Now, the first option is this, and the second option is this. Which one is you? First one. Okay. First one. Okay, all of you, first one. No one with the second option? Oh, good. No one will say two. क्यों? दो क्यों नहीं बोलेंगे? In soft skills, you have to share your real feelings. Okay, fine then. And anybody with this option? Anyone right now is feeling this कि I guess जो new join हुए हैं उनको लग रहा है ये कौन है, ये क्यों बात कर रही है. जो अभी जब भी ज्वाइन हुए, रोज तो सोनल मैम रहती है, आज कौन है, ये कोई स्टूडेंट तो नहीं. Okay, so जो न्यू आया है, let me tell you कि today is a session that is introduction to soft skills, and I am HR team lead of First Bit Solution, and I am soft skill trainer of you student. So whatever soft skill sessions you are going to conduct, it will be conducted by me. Okay. Next. Fine. So this research, I would like to say before moving towards introduction, 57% of managers say that they are looking for a candidate who is organized and can manage multiple projects. तो ये पढ़ने के बाद में हम सीखेंगे what are soft skills. तो जो 57% managers है जो कंपनी में, उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए हु कैन हैंडल मल्टीपल प्रोजेक्ट्स. और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वही कैंडिडेट हैंडल कर सकता है हु हैव एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल्स. Next is 60% of managers claim the new graduates they see taking jobs within their organization do not have the required soft skills. तो 60% कंपनीज के मैनेजर ने ऐसा बोला है कि जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं, जब वो न्यू फ्रेशर्स जो फ्रेशर्स रहते हैं, न्यू ग्रेजुएट्स रहते हैं, उनको जब हायर करते हैं तो उनमें रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल्स नहीं मिल रही है. 60% मैनेजर्स ने ऐसे कहा है. कैन यू इमेजिन कि जो उनको रिक्वायरमेंट रहती है सॉफ्ट स्किल्स की, उस कैंडिडेट में वो नहीं मिल रही है. And third one, 87% of companies find it challenging to hire talent with excellent soft skills. This is also one of the survey कि 81% जो companies है who hire the new graduates,
उनको एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल्स वाले कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं. एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस इज कि आप लोग टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेते. टेक्निकल प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व, टेक्निकल आंसर्स आल्सो समटाइम्स यू कैन गिव, कोड यू कैन सॉल्व. बट जब लास्ट राउंड आपका रहता है दैट इज एचआर राउंड और मैनेजरल राउंड, एट दैट टाइम क्या होता है की तेव्हाच आपण रिजेक्ट होऊन जातो. Therefore 81 कंपनीज वो कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर रही है जिसमें एक्सीलेंट सॉफ्ट स्किल्स नहीं है. तो ये सोच के यू माइट बी थिंकिंग कि मैम पहले बताओ तो सॉफ्ट स्किल्स क्या है. डोंट वरी. Again, Stanford Research Institute say that 75 to 85% of long-term job success depends on soft skills. मतलब तुम्हारा जॉब का जो भी सक्सेस रेट है वो 75 to 85% तुम्हारे सॉफ्ट स्किल्स पे डिपेंडेंट है. टेक्निकल स्किल्स तो तुम लोग बढ़ा सकते हो, 15 लाइक परसेंटेज टेक्निकल स्किल्स आर ग्रोइंग, बट इफ योर सॉफ्ट स्किल्स आर ग्रोइंग 75 to 85 चान्सेस यू हैव ऑफ सक्सेस इन योर जॉब रोल. ते तुम्ही ऐकलं असेल ना कोणी कोणी की यार ती जी व्यक्ती आहे, तो जो व्यक्ती आहे तो चांगलं गोड गोड बोलून सगळं कन्व्हिन्स करून चालला जाते. इंटरव्ह्यूअर समोर ती नक्कीच चांगली बोलली असेल, तिचं खूप कन्व्हिन्सिंग पॉवर चांगलं आहे, ती खूप चांगल्याने कम्युनिकेट करू शकते, म्हणूनच ती सिलेक्ट झाली आहे. सो ये आपने बहुत बार डिस्कशन भी किया होगा किसी के बारे में. ओके, सो नाउ आई वुड लाइक टू टेल व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स. कैन एनीवन टेल हियर फर्स्ट तुम्हाला काय वाटते सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे काय आहे? Can you unmute and tell soft skills क्या है? Can you tell one word? What is soft skills? What are soft skills? Anyone? Can you just unmute and soft skills? Communication. Communication, very good, Himanshu. Who else? Behavior. Very good. So let me see, you have given the answer. Okay, next. Behavior, communication. What else? Okay. So simple definition I will give to you about soft skills. कि जहां पे you need to show skills with the people, in front of people, related to people, those are the soft skills. Now example, you are communicating with the person, आप एक दूसरे से बात कर रहे हो. Communication, convincing power, keeping our ideas, convincing someone, presenting our ideas, saying something to someone without misunderstanding, all this consists of communication skills. लोगों के साथ बात करना. Working with a team, related to team, तो टीम के साथ कोलैबोरेशन, टीम के साथ कम्युनिकेशन, टीम के सामने आइडियाज रखना, टीम के साथ में प्रोजेक्ट्स करना, दैट इज अगेन people skills. Second is your project. So if you get 1 or 2, 3 projects, तो वो प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना, हर एक प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कंप्लीट करना, इम्प्लीमेंट करना, ऑल दोज थिंग्स रिक्वायर्ड सॉफ्ट स्किल. अब उसमें एक चीज आ जाती है दैट इज रिलेटेड टू यू एज अ पर्सन. टाइम मैनेजमेंट. What are the techniques you use to manage time? What are the ways of managing the time? Knowing this is soft skills. Again, time management is related to a person, a people, like people. So this is one of the soft skills. Second is if you get some kind of problem in your group, if you see some challenges to in front of you, usko tackle karna, problem solving skills. Problem solving skills is nothing but the soft skills. नेक्स्ट इस ग्रुप में आप कुछ काम कर रहे हो, यू आर डिस्कसिंग, यू आर टॉकिंग विद ईच अदर एंड सडनली कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. हाउ यू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज सॉफ्ट स्किल्स. सो जहां पे लोग इन्वॉल्व है, जहां पे आपको इंडिविजुअली कोई स्किल चाहिए है टू इम्प्लीमेंट द टास्क, द टेक्निकल थिंग, दोज आर द सॉफ्ट स्किल्स. अब हमको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारी स्किल हमको चाहिए इज प्रेजेंटेशन स्किल. अब प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी शेयर करके प्रेजेंट करना नहीं होता है. प्रेजेंटेशन इज एक्सप्रेसिंग आवर आइडियाज एंड सेकेंड इज कम्युनिकेशन स्किल. अब आगे जाके इंटरव्यू जब आप देते हो तो इंटरव्यूअर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपकी चेक करता है, दैट इज लीडरशिप क्वालिटी. आर यू अ लीडर, डू यू हैव दैट क्वालिटी. अब लीडर क्या है, लीडरशिप क्या है, वो सब सॉफ्ट स्किल्स में हम पढ़ने वाले. How are you going to handle people? How you manage the difficult people? How you talk with the difficult people? ये सब चीजें पता रहना is nothing but the soft skills. अब इंटरव्यू क्रैक करना है तो इंटरव्यू में कैसे आंसर्स देना है वो हो गई हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. रेज्यूमे बिल्ड करना इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल.
ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करने के लिए टेक्निक सुनना इज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. सो अलॉन्ग विथ सॉफ्ट स्किल्स हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑल्सो. ओके, नाउ इज इट क्लियर एवरीवन? Yes or no? Unmute and tell. Or just send some emojis, some reaction. You can see the reaction option in front of you. Send some reaction. Yes, ma'am. Perfect. Yes. तो यही सारी चीजें हम सॉफ्ट स्किल्स में पढ़ेंगे. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन इज कि सॉफ्ट स्किल्स की वजह से यू कैन क्रैक द एचआर राउंड. सिंपल. If you don't have soft skills, you'll not be able to speak. You'll not be able to express your ideas. If you're not able to express your ideas, how are you going to convince the interviewer? तो सबसे ज्यादा important चीज क्या होती है? जैसे टेक्निकल में you learn some technique, you learn some technology, you learn some concept. अब वो भूल ना जाए इसके लिए हम क्या करते हैं? उसे बार बार रन करके देखते हैं. एरर आता है, उसे बार बार हम रन करते हैं. एरर जो भी आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. एक कंसेप्ट को हर बार रीड करते रहते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड इट टोटली. सॉफ्ट स्किल का भी सेम होता है. जो भी हम सीखते हैं सॉफ्ट स्किल्स में, सुन के कुछ नहीं होगा. When you are just listening to me right now regarding soft skills topic, nothing will happen. Then when will you get the result? कब मिलेगा result? Yes, anyone? Anyone? सॉफ्ट स्किल्स सीख गए या फिर इम्प्लीमेंट खुद के लाइफ में कर रहे हो, तो ये रिजल्ट कब मिलेगा? आप तो डेली यहाँ आओगे, सेशन में बैठोगे, सॉफ्ट स्किल्स पढ़ोगे, सुन के 1 घंटे बाद में हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ? कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे इन योर लाइफ? कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, सॉफ्ट स्किल सेशन में देयर आर नो रॉन्ग आंसर्स. Whatever answer you are going to give, it will be your perception and it is going to be right only. When we practice, okay, soft skill is more important than technical skills. Okay, good, Himanshu. Soft skills are more important than technical skills as a fresher तो है ही है, because interview में सबसे ज़्यादा 75 to 80% of your soft skills will matter regarding your selection and rejection. म्हणजे 75 to 80% आपका behavior देखा जाता है as a fresher in an interview. Okay, so yes, Vijay is saying when we practice, perfect, communicate, behavior. So whatever you are going to learn, a minute, I haven't read all the, okay. So whatever you are going to learn in soft skills, आपको वो practically जब implement करोगे, तब जाके you will get the result. Now there is a confidence building topic in soft skills. तो अभी आप यहाँ पे 2-3 सेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के करो इन सॉफ्ट स्किल. 3 दिन बाद it is not at all possible that you will be a confident person unless and until you will implement what we have learned in confidence session. Implementation is important. अभी एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल you have joined here the session. बट अब किसी किसी को डर होगा कि मैम सबके सामने बात करने में डर लगता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई तो वर्ड्स नहीं निकलते हैं. तो माय सजेशन विल बी कि अभी सिर्फ अनम्यूट करके यस बोलो. अगेन सम स्टूडेंट विल से नो मैम डर लग रहा है, एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन. यू आर नॉट टेकिंग अ बेसिक स्टेप ऑफ अनम्यूटिंग एंड सेइंग यस. यू आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव. सो सॉफ्ट स्किल्स ऐसा है कि सुन के कुछ नहीं होगा. यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ. तो आपको ये भी पता होगा कि आपके जब टेक्निकल सेशन होते हैं तो लैब भी होते हैं. डू यू नो लैब सेशन? यस स्टूडेंट, लैब. अब सॉफ्ट स्किल्स के भी लैब होंगे कि जो हम पढ़ने वाले हैं उसके रिलेटेड प्रैक्टिकल सेशन. बट अभी स्टूडेंट्स का क्या होता है कि प्रैक्टिकल सेशन सॉफ्ट स्किल्स के बोले तो एक तो तुम ऑनलाइन रहते हो, तुम्हारे पास में सारा पावर रहता है. So when I say, come on, everyone will start saying one word from their side, or everyone will start introducing themselves. तो मुझे स्क्रीन पे एक ही मैसेज दिखता है, left the meeting, left the meeting, left the meeting. So this is the like power you have in your hand. बाकी कुछ नहीं. तो इसलिए implementation is important. तो वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सपोर्ट यू. आई एम नॉट डायरेक्टली गोइंग टू से कि कम ऑन स्टूडेंट, यू कैन डू इट, यू कैन प्रूव टू एवरीवन. ये वाला मुझसे नहीं होगा. काइंड ऑफ मोटिवेशन.
वो जो मोटिवेट करते हैं सबको कि तेरे में एबिलिटी है, तू कर सकता है. All those things we are not going to do. We are just going to go with the theoretical thing and the practical thing. And we are going to do step by step. Okay. Now, these are the interview rounds. So, resume building तो हम पढ़ेंगे. Resume building is nothing but the employability skill. Aptitude भी आपका होगा first with solution में. Then technical round भी आप सीख ही रहे हो. जो टेक्नोलॉजी के लिए आपने एडमिशन ली है या लेने वाले हो वो तो आप पढ़ोगे ही. And soft skills are most important for your HR round. Okay. सो HR राउंड में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, HR राउंड में कैसे आंसर देना है, what are the frameworks of HR, how to tackle the most commonly asked questions in HR, ये सारे चीजें we are going to learn in soft skill session. Okay, so all these things we are going to learn again. Soft skills ये सुन के आपके कान से पक जाएंगे. तो कैसे बैठना है, body language we are going to see everything. And again I will repeat कि you will crack the aptitude round. Aptitude आप इतने बार practice कर लोगे, वो crack कर लोगे. You will crack your technical round. Resume भी अच्छा खासा बना लोगे. Resume scrutinize हो जाएगा. Aptitude आप clear कर लोगे. Technical round भी आप clear कर लोगे. Because technology सीख रहे हो, daily practice कर रहे हो. But what happens is कि when you go for HR round, उसमें ही select नहीं हो पाते. Can anybody tell me the reason? What is the reason why students are getting rejected in HR round? Yes, anyone? Communication. कॉन्फिडेंस नहीं होता है मैम. कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बोल ही नहीं पाते, पता ही नहीं रहता क्या बोलना है. टेक्निकल में हमको पता है, कोड दे दिया हम रन कर लेंगे, टेक्निकल के रिलेटेड हम आंसर दे देंगे. एप्टीट्यूड भी हमको पेपर दे देंगे, हम सॉल्व कर लेंगे. रेज्यूमे तो स्क्रूटिनाइज हो ही जाएगा, स्क्रीनिंग हो ही जाएगा. बट HR में खुद को रिप्रेजेंट करना होता है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. एंड फ्रॉम योर अटायर, फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए, ऑफलाइन इंटरव्यू है तो एंटर कर रहे हो, एंटर करने के बाद में चेयर पे बैठे तक के ये जो 10 to 20 सेकेंड का टाइम स्पैन होता है, विद इन दिस टाइम स्पैन HR डिसाइड कर लेता है आर यू रिजेक्टेड और आर यू सिलेक्टेड. 50% डिसीजन उसका वहीं पे हो जाता है. द वे यू आर एंटरिंग, द वे योर बॉडी लैंग्वेज इज, योर फेस जेस्चर जो है उसमें आ गया है, the way you are wishing, the way you are greeting, the way you are talking, just one sentence. आने के बाद, बैठने के बाद एक सेंटेंस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि are you going to get 50% डिसीजन उनका हो जाता है कि ये कैंडिडेट 50% इज सिलेक्टेड just the way he is a confident and perfect body language, या फिर 50% ये तो रिजेक्ट है, आंसर से हम देख लेंगे कि ये अच्छा खासा कैंडिडेट है या नहीं, और बाकी 50% आपको आंसर देके कवर करना पड़ता है. So the way you are entering, the way you are sitting, the way you are greeting, ये सारा का सारा अपना आता है सॉफ्ट स्किल्स में. तो वो 50% तो हमको हासिल करना ही पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. सो व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर? सो इसके साथ में देयर आर नंबर ऑफ टॉपिक्स. तो सबसे पहले तो पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग मतलब, कैन एनीबडी टेल व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग? Yes, public speaking. Any idea? Simple है, don't search on Google. Giving speech. गोड़क्यात बोलने. Repeat once again. गोड़क्यात बोलणे. अच्छा, you spoke in Marathi, म्हणजे ग्रुप मध्ये बोलणे. Okay. Yash, Vaishnavi said poor. Okay, you get rejected in HR because of poor communication and bad communication skill. HR राउंड में क्या चेक करते हैं, ये सारी चीजें हम सॉफ्ट स्किल्स में पढ़ेंगे. ऑल द वन टॉपिक, 3 days ऑफ टॉपिक इज रिलेटेड टू HR राउंड ओनली. So Himanshu is saying giving speech in public, confidently speaking in front of people. Okay. Now public speaking is nothing but speaking in front of public. इसका मीनिंग ये नहीं है कि आपके सामने 100 लोग होने चाहिए और 100 लोगों के सामने you are speaking, that is public speaking. Even if you are in a group of 4 and even if you are in a meeting of group of 4, उनके साथ में कैसे बात करना है, that is public speaking skill. Even if you are presenting something to just one person, that is also public speaking skill.
So ये हम सीखेंगे. उसके बाद में we are also going to learn about active listening. So active listening क्यों important है वो, it is a part of communication skill, वो कैसे important है ये भी हम देखें. Now next is resume writing. So अभी तो ATS system है, like application tracking system, ATS is there. तो सारे companies वो resume वैसे scrutinize करते हैं. But you do you know कि अगर resume कोई HR या फिर recruiter अगर देख रहा है तो वो एक resume देखने के लिए कितना टाइम लगाता है? Can anybody tell? अगर आपका resume कोई HR देख रहा है कि इसको select करना है या reject करना है, ये उसका डिसीजन कितने टाइम में हो जाता है जस्ट फ्रॉम योर रेज्यूमे? यस, एनीवन? टू मिनट्स. ओके, हिमांशु इज सेइंग 2 मिनट. वैष्णवी मैक्सिमम 2 मिनट. अनुष्का मैक्सिमम 2 to 3 minutes. ओके, ऑल ऑफ यू आर सेइंग 2 minutes. सब लोग सगळेच 2 minutes म्हणताय. ओके फाइन. सो इफ यू आर सेइंग 2 minutes, फिर आप ये हा आकडा ऐकून तर तुम्ही शॉक होऊन जाणार. Recruiter takes 7 to 14 minutes or seconds. 7 to 14, 1 4 14 minutes or seconds? Seconds, exactly. They just take 7 to 14 seconds to scrutinize your resume because they just check the keywords. आपका resume देख के ही, the way you have written your resume, the way you have highlighted it, the way you have written your technical skills, courses, projects, just they will require 7 to 14 seconds max to max to decide whether your resume is selected or rejected. So this is a reality. रेज्यूमे आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो भी हम पढ़ेंगे. दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न रेज्यूमे राइटिंग. अब आते ईमेल एटिकेट. तो अभी तो ईमेल अगर लिखना है, ईमेल ड्राफ्ट करना है, तो हम किसको पूछते हैं? हमको अभी अभी ड्राफ्ट भेजना है एचआर को कि मेरा एप्लीकेशन कंसिडर करो, तो कहाँ से आप कॉपी पेस्ट करोगे ईमेल? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड नाउअडेज? गूगल के अलावा और कौन है? हाँ, एआई. अमोल, वैष्णवी. ओके, चैट जीपीटी. राइट अदनान, राइट विजया. सो अभी ऐसा है कि ईमेल से ईमेल जो है हमको ड्राफ्ट करके मिल जाता है चैट जीपीटी से, बट वी डोंट नो द एटिकेट ऑफ ईमेल. वी डोंट नो द कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल. वी डोंट नो हाउ टू अलाइन द ईमेल. वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट द ईमेल. सो हमको रेडीमेड तो मिल जाएगा, बट उसको चेंजेस करने के लिए वी शुड हैव नॉलेज अबाउट द मेल कंपोनेंट, मेल एटिकेट, मेल कैसे लिखा जाता है, अलाइनमेंट कैसे रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स. सो ईमेल एटिकेट भी हम पढ़ेंगे. उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, वो सब पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. प्रेजेंटेशन स्किल्स इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड प्रेजेंटिंग द वे आई एम प्रेजेंटिंग राइट नाउ. तो अभी तो मैं ट्रेनिंग दे रही हूँ, सो दिस इज नथिंग बट माई प्रेजेंटेशन स्किल्स. And presentation skills and communication skills are totally different. Presentation skills is one way communication, but communication skills मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा लोग involved रहते हैं to communicate. So now presentation skills, advanced part, how to make eye contact, how to stand, our body language while presenting, our tone, our words, everything we are going to learn in presentation skills. And the next part is the body language. So how many of you feel that body language is important? And why do you feel body language is important? Okay. So why do you feel कि body language क्यों important है? क्यों लगता है? Write in the chat box. Write in chat box why body language is important. No one? So no one like to tell? It shows confidence. Body language shows confidence. Okay, what else? Fine. So why body language is important? कि अगर मैंने यहाँ पे खुद को म्यूट कर दिया,
म्यूट करने के बाद में जस्ट फ्रॉम माई एक्सप्रेशन, माई हैंड जेस्चर्स, माई आई कॉन्टैक्ट, यू विल एबल टू टेल दैट एम आई कॉन्फिडेंट और एम आई इन स्ट्रेस. तो फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम जस्ट सिटिंग हियर and I'm smiling and like giving training. But what if I'm giving you training in this way? So you might be feeling depressed by looking at my face, और आपको समझ में आ गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है. Now if I'm giving presentation in another way, now you might be feeling that I am a confident person. So again, with the words, I will say, the students, we are here to learn the introduction of the soft skill session. So उसमें हम पढ़ने वाले हैं public speaking, active listening, resume, email writing. तो email writing तो तुमको पता है कि ChatGPT से तुम copy कर सकते हो. But उसके etiquettes हम पढ़ने वाले हैं. Etiquettes के साथ में component हम पढ़ने वाले हैं. So how is my expression? My body language is the expression, eye contact, all those things. So now when I smile, confuse, डरा हुआ, body language tells about us exactly. So when I speak with a smile, everything changes. It seems that more confident. अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत भी बोलूंगी तो तुमको ऐसा लगेगा कि नहीं ये राइट ही है. बट अगर डरते डरते मैंने कुछ एक्सट्रीम सही भी बोल दिया तो भी तुमको डाउट होगा. सो जैसे मैंने बोला कि एंटर करते ही, इंटरव्यू के लिए एंटर करते ही 50% डिसीजन तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से ही हो जाता है. सो इमेज, फर्स्ट इंप्रेशन स्पीक्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन. आप भी बहुत बार इमेज बना लेते हो. वंस यू सी अ पर्सन, द वे दैट पर्सन इज ग्रूम्ड इन द सेंस क्या ड्रेस पहना है, the person, the way that person is walking, the way that person is looking everywhere, the way that person is standing, उससे हम वो पर्सन की इमेज बना ही लेते हैं. सो ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि ती तपा किती ॲटिट्यूड आहे, तो तपा किती अगाऊ आहे, ती तपा कशी बसली आहे. सो हम उनसे बात भी नहीं कर लेते, फिर भी हम ऐसा बोल देते. तो हे आपण खूपदा केलंय. And next is the time management. How to manage the time, how to set a schedule, what are the techniques used in time management. But how many of you are really good at managing time? आप में से कौन कौन, raise your hand. You are very good at managing time. Everything happens on perfect time. सही भी नहीं है क्या? चलो फिर काम में आएगा सेशन टाइम मैनेजमेंट का. बहुत सारी चीजें हैं हम सीखेंगे. देन नेक्स्ट इज द कॉर्पोरेट एटिकेट. ये भी हम पढ़ेंगे. इसमें आ गया लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, एंड द लास्ट पार्ट इज द मॉक्स. अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स एक बैच में रहते हैं और मॉक के लिए आते हैं सिर्फ 5, और बाकी 25 क्या बोलते हैं कि मैम प्रिपेयर्ड ही नहीं. मॉक इसी चीज के लिए होता है, जस्ट टू अंडरस्टँड की तुम्ही किती पाण्यात आहे, किती पाण्याच्या वर आहे. पाण्यात आहे म्हणजे कि कितना डूब रहे हो या फिर बच रहे हो, कितना प्लेसमेंट के तरफ जा रहे हो या प्लेसमेंट के नीचे आ रहे हो. सो मॉक इज टू चेक योरसेल्फ. मॉक जितना दोगे, मॉक जितने बार प्रैक्टिस करोगे, उतने बार तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ मॉक. आते ही नहीं है, मैम प्रिपेयर्ड नहीं है, मैम नहीं पता, मैम नेक्स्ट टाइम दू क्या. वो नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगा. अगर अभी आप मॉक के लिए आए हो एंड इफ यू सेड कि मैम आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई विल गिव मॉक्स लेटर, तो व्हेन आई से कि ओके गो अहेड, यू गिव योर मॉक लेटर, तो वो एक रिलैक्स आपको फीलिंग आ जाएगा. और बाद में लेटर कभी नहीं आने वाला. यू ऑल्सो नो लेटर मतलब मैं देनी नहीं वाली हूँ मॉक. सो फेस द मॉक इंटरव्यूज. जीडी के अपने मॉक होने वाले हैं, इंटरव्यू के हमारे अपने मॉक होने वाले हैं. बाकी टेक्नोलॉजी जो आप पढ़ने वाले हो उसके भी मॉक्स हो गए. जितना मॉक के लिए प्रेजेंट रह सकते हो उतना रहो, बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेल यू वेयर यू आर. आर यू नियर द प्लेसमेंट और आर यू बिलो द प्लेसमेंट. फाइन. और इसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन. लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट डालना है, कैप्शन कैसे लिखने हैं, अपना प्रोफाइल फोटो जो रहता है, कवर पिक्चर जो रहता है वो कैसे डालना है, बैनर लिंक्डइन का कैसे डालना है, हाउ टू क्रिएट द सॉरी लिंक्डइन अकाउंट,
ऑल अबाउट में क्या लिखना है, हेडलाइंस में क्या लिखना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी रिलेटेड टू द लिंक्डइन. सो एचआर को कोल्ड मैसेजेस कैसे भेजने हैं, तो वो सारी चीजें वी आर गोइंग टू सी इन लिंक्डइन ऑल्सो. ओके, लीडरशिप क्वालिटी हम सीखने वाले हैं, टीम वर्क हम सीखने वाले हैं, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन हम पढ़ने वाले हैं. सो ज्यादा से ज्यादा टाइम हम देने वाले हैं रेज्यूमे, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ग्रुप डिस्कशन. इस पे सबसे ज्यादा टाइम जाता है बिकॉज अभी ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं. कोविड खत्म, देखो सब प्लेसमेंट ड्राइव जो है ऑफलाइन हो रहे हैं, सो यू नीड टू गो देयर इन ऑफलाइन एज अ पर्सन. और जीडी हो रहे हैं बिकॉज बल्क में आ रहे हैं सब लोग, वॉक इन्स चल रहे हैं, तो वहां पे ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं. ओके, सो और बहुत से टॉपिक्स है. देन व्हाट एल्स इज लेफ्ट टू राइट. हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का टॉपिक है, ईमेल राइटिंग इज डन, देन ग्रुप डिस्कशन इज देयर, टाइम मैनेजमेंट. ओके, देयर आर अदर फाइन सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड टॉपिक तो है. ये सारा पढ़ते पढ़ते यू विल सी व्हाट टाइप ऑफ स्किल्स यू आर गेनिंग इन योरसेल्फ. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू. तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है तुम सारे स्टूडेंट से. व्हाट हैपेंस, यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर प्लेस, कैमरा ऑफ करके बैठे हो. अब नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी सिटिंग विद अ टेबल एंड अ चेयर, and some of you might have switched on the session in a mobile. बेड पे लेटे हो और आराम से सेशन सुन रहे हो. और some might be just kept the mobile, कुछ काम कर रहे आते जाते सुन रहे होंगे. So you are at your comfort level. So what is my expectation from you all is कि whenever you are attending any session, sit, make a productive environment around you, take a table, take pen and book and start writing the notes, start taking down the notes. और हम किस पे रिलाई रहते हैं, वी रिलाई ऑन रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग है ना, अगर नहीं समझा, नहीं लिखा नोट्स, तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, और वो रिकॉर्डिंग हम कभी नहीं सुनते. व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स, जितना आप लिखोगे उतना आपको ध्यान में रहता है. ओके, सो नाउ इन सॉफ्ट स्किल्स माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इज योर विलिंगनेस. जैसे आज आपने विलिंगनेस दिखाई टू ज्वाइन एट 9 PM, बट तुमको पता नहीं था सॉफ्ट स्किल्स है, वो अलग बात है. बट जब भी सॉफ्ट स्किल्स रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने सॉफ्ट स्किल्स को अंडररेट करके रखा है. इन द मीनिंग इज कि सबसे कम अटेंडेंस सॉफ्ट स्किल सेशन को रहती है इन कॉलेज लाइफ, इन कॉलेजेस. बट यहाँ पे जब ऑफलाइन सेशन भी मैं जब लेती हूँ सॉफ्ट स्किल्स की, तो फ्रॉम डे वन द अटेंडेंस इज फुल, बिकॉज सेशंस ही ऐसे होते हैं कि इंटरैक्टिव सेशंस. I don't force anyone to come up and speak. I just make them first comfortable. So attendance in offline session in my session is good. Online में क्या होता है, डे वन से ही स्टूडेंट ज्वाइन ही नहीं करते जस्ट बाय लुकिंग एट द वर्ड सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज एवरीबडी फील्स दैट आई एम वेरी गुड एट सॉफ्ट स्किल्स. तो जितना आप सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करते हो ना, उतना तुम्हारा इंटरव्यू में आंसर देते वक्त दिख के आता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव. So my expectation is willingness. So first and the foremost thing, you should be willing to join the session. Willingness to learn. Even if it is related to personal life, even it is related to very small things जो आपने सुनी होगी, still you have to be here and learn about it. नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी. अब एक दिन आप एक दिन सेशन को आ रहे हो, दूसरे दिन बोल रहे हो कि नहीं प्रेजेंटेशन ही है, मुझे तो प्रेजेंटेशन नहीं देना है, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा. फिर बीच में एक ऐसा थोड़ा सा सेशन में आके देखते हैं 1-2 सेकंड के लिए क्या चल रहा है, अरे सब लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एंड यू लीव द मीटिंग, यू लीव द मीटिंग. तो दिस इज नॉट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज अटेंडिंग द सेशन ऑन डेली बेसिस. Does anyone here goes to gym? Anybody here goes to gym? ठीक है, तुम सबको तो पता ही होगा. सो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि इफ यू हैव डिसाइडेड टू जॉइन अ जिम एंड कल सपोज आज मंडे है, आज से आपने डिसाइड किया कि आज आई विल गो टू जिम. आज आप जिम को गए और फिर आज आपको पता चला कि यार बॉडी बहुत पेन हो रही है और कल भी जाना है, तो कल आप क्या बोलते हो कि जाओ दे, मैं वेडनेसडे ला जाते, कल नहीं जाता हूँ वेडनेसडे को. फिर वेडनेसडे आता है, फिर आप बोलते हो कि नहीं यार छोड़, वेडनेसडे भी रहने देते, थोड़ा बॉडी पेन कम हो जाएगा, थर्सडे को जाते. एंड थर्सडे को यू से कि छोड़ अभी फ्राइडे को जाते. एंड देन सैटरडे को आप बोलते हो कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये पांचों दिनों का जिम, 5 घंटे का जिम मैं काम करता हूँ, संडे को जाके एक दिन मार के आ जाता हूँ. इज इट पॉसिबल? विल यू गेट द रिजल्ट? नो.
Definitely not. Other students, what do you think? Will you get the result? ये आपने एक वीक मिस किया and you're telling yourself कि ये 1 घंटा मैं संडे को बैठ के पूरा कंप्लीट कर लूंगा. Not at all. You'll not get the result. In fact, your health will get affected. तो same is studying. कि when you decide कि यार संडे है ना, रिकॉर्डिंग भी है ना, तो रिकॉर्डिंग से मैं संडे के दिन पूरा पढ़ लूंगा. और जिस दिन संडे आता है उस दिन फिर प्लान्स बनते हैं, उस दिन कुछ और कॉल आ जाते हैं कि इधर जाना है उधर जाना है, रह गया वैसे के वैसे. और अगर संडे को आप बैठ भी गए, प्लान्स भी नहीं बने, तो संडे को पूरा 5-6 घंटे का सेशन देखना आप नहीं कर पाओ, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी पावरफुल पर्सन. और कर भी लिया वो 5 घंटे का, तो वो इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू, इट्स वेरी इजी टू स्पेंड डेली 1 hour rather than spending 5 hours on just Sunday. डेली 1-1 घंटा निकालो, डेली 1-1 घंटा अटेंड करो. दिस इज कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट इज कि वट एवर चैलेंजेस यू फेस, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ प्लान बना दिया एंड यू टोल्ड कि नहीं यार मेरा सेशन है, बट वो दोस्त बोलता है अरे रिकॉर्डिंग है ना तेरा ऑनलाइन ही तो है, इसीलिए तो ऑनलाइन किया है तो चल. तो तुम बोलते अरे हाँ रिकॉर्डिंग है चल मैं चले जाता हूँ. देन यू आर नॉट कमिटेड. तो कमिटमेंट इज कि बाकी चीजें दूर, फर्स्ट दिस. First priority is my job. First priority is my placement. First priority is my career right now. And the fourth part is practice, practice, and practice. Soft skills का यही rule है कि whatever I tell, whatever skills you learn, you have to implement it on daily basis. तब जाके you'll get the result. ओके सो यही है अपना सॉफ्ट स्किल्स के रिलेटेड जो सारी चीजें आज देखी है, तो ये सब हम पढ़ेंगे. इट्स गोइंग टू बी लाइक नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेशन एंड डे बाय डे यू लर्न नंबर ऑफ स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड मोस्ट प्रेफरेबली वी आर गोइंग टू लर्न, हम पढ़ेंगे अपन वाचना रहे इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, उसमें सारे स्किल्स आ जाते हैं. ओके सो एनी क्वेरी एनीबडी इज हैविंग? Any question, any query? टाइमिंग तो यही रहेगा एंड ये रहेगा नहीं रहेगा आई कैन नॉट टेल, बट अदर सब्जेक्ट्स अदर ट्रेनिंग के हिसाब से द शेड्यूलिंग टीम शेड्यूल्स योर टाइम. सो देखते हैं तो क्या टाइम होगा क्या नहीं वो बाद में पता चलेगा. जैसे यू टेक एडमिशन यू विल बी इन अ पेड ग्रुप, तो ग्रुप में पूरे वीक का ये आ जाता है, टाइम टेबल आ जाता है, कौन सा सेशन, कौन सी मैम, कितने बजे, कौन सा दिन, ये सारा आपको दिख जाता है उसमें. ओके ओके सो एनी क्वेश्चन एनीवन इज हैविंग? नो क्वेरी? अभी टाइम हो गया मैम, अभी हमको खाना खा के सोना है, या फिर कोई कोई ऐसा होगा सेशन सुनते सुनते खाना भी खा लिया होगा. Okay, fine then. No queries? Okay. So next time we are going to meet when we will begin our soft skill sessions. तो देखेंगे आपको टाइम टेबल आ ही जाएगा. और if you want to ask, you can ask on group also. Soft skills कब start होगा? You'll get the schedule. Your queries will be solved on the group itself. So whatever queries you have, you can just send on a group. Fine. Okay then student, nice to meet you everyone. So कल से सोनल मैम वापस आएंगी. Today was just an introduction to soft skill session. Hopefully we'll meet जब भी अपना session continuous soft skills का start होगा. Okay then, bye everyone. Good night. Take care. Let's meet soon. Thank you, ma'am. Welcome, Amol. Thank you so much, all of you. Thank you. You're welcome. You're welcome.